Unacademy. Welcome to CAT Batch. Hello, guys. This is Ashish. I welcome you once again to Unacademy CAT YouTube channel for your CAT and OMETS preparation. This is Succeed DI Batch, and today we are going to start with the discussion of pie charts. This is going to be the first session of pie charts. So yes, let's do it today. Acha, prior to this, we have already covered few topics under this batch. The first one of which is tables. We have taken care of tables. We have covered line graphs. And also we have covered bar graphs. So three topics we have covered under this series, under this DI batch. Today we are going to start pie charts. It's a completely independent topic, completely new topic, not related to any one of these three. So you guys can start from pie charts as well. Welcome Kunal Sahu. If you are a student, क्योंकि उसके ऊपर तो स्टूडेंट नहीं दिख रहे, उसके ऊपर है स्मार्ट बॉय. स्मार्ट बॉय इज डेफिनेटली नॉट अ स्टूडेंट. वेलकम एवरीबॉडी. ठीक है, चैनल तो आपने ज्वाइन कर लिया होगा, Unacademy_Ashish. बी अ पार्ट ऑफ इट. सारे सेशंस के लिंक आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जो भी फ्री सेशंस है. क्विकली आगे बढ़ते हैं. आप चैनल ये क्यूआर स्कैनर भी, क्यूआर कोड भी स्कैन करके आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. एक बार फटाफट दोस्त आर प्रेजेंट एंड पेइंग अटेंशन, हैशटैग हाय हेलो कुछ भी लिख दो. दिस इज फ्री कुणाल साहू. ऐसे सक्सीड बैच में ब्रेक आएगा. अच्छा आशीष, एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं तुमसे, क्या लगता है सक्सीड बैच में कब तक ब्रेक चलेगा? मैक्स टू मैक्स CMAT? Max to max CMAT. What after CMAT? After CMAT, we have only CAT 2023. So we'll be more regular after CMAT. Let's think of those students जिनके पास चंद सांसें बची है. तो एक हफ्ता. Okay. And after that, yes, we are going to roll for CAT. Everybody is going to roll for CAT. Okay. So we had this 25% discount offer valid till today on all possible subscriptions, plus so iconic ho सबके ऊपर we had this 25% discount. The batches that we are starting is a target IM batch that started today. Okay, 27th of April we started a batch, and we started a batch on 20th of April as well, and we started a batch on 13th of April as well. सर किस बैच का सब्सक्रिप्शन लेना है? Once you subscribe, you are entitled to attend all the batches that we launch on Unacademy Plus platform. Let it be a batch for CAT, let it be a batch for ZAT, let it be a batch for SNAP, NMAT, IFT, MHCT, anything. One subscription for all the batches, for all the exams, for all the mocks, for all the doubt sessions, everything. Okay. आइकनिक में थोड़ा सा डिफरेंस है. यू गेट पर्सनलाइज्ड टच. आपको 1:1 मेंटोरशिप मिल जाता है, आपको 1:1 प्रोफाइल बिल्डिंग में हेल्प मिल जाती है, GDPI अवार्ड एड ऑन सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, आपको बुक्स मिल जाते हैं फिजिकल फॉर्म में. सो यू कैन चेक आउट योर रिक्वायरमेंट, एंड एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन सब्सक्राइब आइदर टू प्लस और टू आइकनिक. लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन. चलो बच्चा पार्टी. सबसे पहले सक्सीड DI बैच. The topics that we are going to cover in this batch in detail is tables that we have already covered. Second one is line graph that we have already covered. Playlist में already पड़ा हुआ है. Don't worry, you guys can go and watch it. Third is bar graphs that we have already covered. Okay, and the fourth one is pie chart that we are going to start today. And then there would be miscellaneous graph or mixed graph, miscellaneous graphs. Okay, and yes, and then comes logical DI, which consists of maximization, minimization, minimization,
Yes. And then we will be covering games and tournaments. Games and tournaments. And then we'll be covering routes and networks. Routes and networks. And last but not the least, LR based DI. ओके, ये हमारा एजेंडा है इस बैच का जिसमें आप बैठे हो, सक्सीड DI बैच. As I've mentioned, we have already covered these three topics: tables, line graphs, bar graphs. There is a long way to go still. Okay. Today we are going to start pie chart. So before we start pie chart, एक बार hashtag फटाफट ask 10 लिख दो comment box में, and then we'll start with the discussion of pie charts. Welcome Vipul, long time no see. अच्छा, you are aspirant of CAT 2023 या 2024? मुझे थोड़ा बहुत याद है आपके बारे में. एक बार फटाफट लिख दो hashtag ask 10 in the comment box, and then we'll start. Kunal Sahu says hashtag ask 10. वेरी नाइस. और यार और एक दो लिख दो यार, ऐसा ना करो. चलो, डू लाइक द सेशन फॉर श्योर. लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ पाई चार्ट्स. आ जाओ. आस्क 1 और छोटा 0, इतना क्रिएटिव. चलो देखो, अभी जो पाई चार्ट है ना, ये पाई चार्ट आपको दो तरीके से दिखेगा. पाई चार्ट या तो डिग्रीज में आपको दिखेगा. पहला पाई चार्ट या तो आपको डिग्रीज में दिखेगा, ओके, या पाई चार्ट आपको परसेंटेजेस में दिखेगा. पाई चार्ट या तो आपको डिग्रीज में दिखेगा, पाई चार्ट आपको या तो परसेंटेजेस में दिखेगा. वेलकम नीरज. पाई चार्ट आपको दो फॉर्म में दिखता है, आइदर इन डिग्रीज और इन परसेंटेजेस. सो आपको इन दोनों का एनालॉजी समझना पड़ेगा. हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू परसेंटेजेस और परसेंटेजेस इनटू डिग्रीज. ओके, चलो, मुझे लगता है कि मुझे एक और सर्कल रखना चाहिए. ओके, सो एक और सर्कल रख लिया हमने. अब लाइंस ड्रॉ करने से बेटर मैं पेन से लाइन ड्रॉ कर दूंगा. ओके, चलो, चेक दिस आउट. चेक दिस आउट. ओह, ओके, ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है. ठीक है, वेरी नाइस. नाउ व्हेन वी स्पीक इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज, द इंटायर सेंट्रल एंगल वुड बी 360 डिग्री. बोलो यस सर. व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज, द इंटायर सेंट्रल एंगल is how much? Total central angle is 360 डिग्री. बोलो यस सर. टोटल सेंट्रल एंगल इज 360 डिग्री. अगर हम डिग्रीज के टर्म्स में बात करेंगे, सो दिस एंटायर सेंट्रल एंगल वुड बी 360 डिग्री. ओके, और अगर हम परसेंटेजेस के टर्म्स में बात करेंगे, ओके, सो पूरा का पूरा सेंट्रल जो है, इट इज 100%. अगर परसेंटेजेस के टर्म में बात करेंगे तो इट वुड बी 100%. ओके, इट वुड बी 100%. नाउ यू शुड बी अवेयर ऑफ, परसेंट के टर्म्स में बात करेंगे तो इट इज 100%. नाउ यू शुड बी अवेयर ऑफ हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू परसेंटेजेस और परसेंटेजेस इनटू डिग्री. हाउ टू कन्वर्ट डिग्रीज इनटू परसेंटेजेस एंड परसेंटेजेस इक्वल डिग्री, परसेंटेजेस इनटू डिग्री. ओके, एज वी कैन ऑब्जर्व, यहां पर 100% है, यहां पर 360 डिग्री है. सो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि 100% is analogous to 360 degrees. बोलो यस सर. 10% is analogous to 36 degrees. बोलो यस सर. 5% is analogous to 18 degrees. बोलो यस सर. 1% is analogous to 3.6 degrees. 1% is analogous to 3.6 degrees. You can use this relationship
to convert degrees into percentages or percentages into degrees. You can use this relationship to convert degrees into percentages or percentages into degrees. Okay, chalo, very nice. Let's take an example. Let's take an example. Suppose we have this A over here. This is A. Let's assume this part to be A, this part to be B, this part to be C, and this part to be D. Okay, similarly, let this part be A, this part be B, this part be C, this part be D. Okay, very nice. If A is, let me say, 135 degrees, B is 90 degrees, C is 90 degrees, and this is 45 डिग्री. अगर इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है अगर डिग्रीज को, या फिर परसेंट लेते हैं, ठीक है, उल्टा ले लेते हैं पहले, फिर ये कर लेंगे. ओके, चलो. Oh, let this be 25%, let this be 25%, let this be 20%, let this be 30%. अगर आपको परसेंटेजेस को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हाउ विल यू डू इट? टेल मी. A in terms of degrees, B in terms of degrees, C in terms of degrees, and D in terms of degrees. अगर आपको करना है तो how would you do it? How would you do it? Now it's very simple. It's very simple. अगर मुझे A को कन्वर्ट करना है, I know that 1% is as good as 3.6 degrees. 1% is 3.6 degrees. So 30% would be 30 into 3.6 degrees. 30 into 3.6 degrees. That would be 108 degrees. So A would be 108 degrees. A would be 108 degrees. अगर B की बात करोगे, अगेन 25% है, 25%. इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 3.6. नाउ द वे यू टेक इट, आप 25 को ऐसे भी लिख सकते हो. 25% को आई कैन राइट 10% प्लस 10% प्लस 5%. ओके, 10% is 36 degrees. This 10% is 36 degrees and 5% is 18 degrees. So ये हो गया 90 degrees. ये हो गया 90 degrees. A would be 108 degrees, B would be 90 degrees. अच्छा देखो, C again, C भी 25% है तो C would be 90 degrees. And ये 20% है तो 20% can be written as 10% plus 10%. 10% plus 10%. बोलो yes sir. तो 36 degrees plus 36 degrees. This is 72 degrees. This is 72 degrees. So these are the respective degrees of A, B, C and D. A, B, C and D. So in this way you can convert degrees into percentages and you can use the same relationship. You can use the same relationship to convert degrees into percentages or percentages into degrees. This one, keep this in mind. You can use this relationship to convert degrees into percentages and percentages into degrees. Okay. Shall. Now let's move ahead. Let's discuss this. Let's move ahead. Next thing. अब देखो suppose total is given as some awkward number 4500 CR. Okay, total is given as some 4500 CR, and these sectors, they represent A, B, C and D. A, B, C and D. These sectors represent A, B, C and D. Also it is mentioned that sales of A is 135 degrees. Okay, sales of B is 90 degrees, sales of C is 90 degrees,
and sales of D is 45 degrees. Okay. If it is asked ki what is the difference between sales of B and C? Tell me. By how much percent B is, or by how much percent B is greater than D? The question is, by how much percent B is greater than D? If this is asked, comparison पूछा है, not the actual values. They have asked the comparison. Okay, so you need not to figure out the actual values. आपको B का एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, D का एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है. If only comparison is asked, तो I can say that B is twice of D, means B is 100% more than D. If only comparison is asked, if not actual values are asked, in most of the questions आपको actual values निकालने की जरूरत नहीं है, but हाँ आपको actual value निकालने आना चाहिए. If somebody asks, tell me the value of A, B, C and D, how will you figure out values of A? How will you figure out the values of B? How will you figure out values of C? How will you figure out values of D? Tell me, what is the actual difference between, tell me the values of A, B, C and D. Here, tell me the values of A, B, C and D. Come on guys. You have these values, 135 degrees. This is 135 degree. This is 90 degree. This is 90 degree. And this is 45 degree. Okay. And the total is 4500 CR. Total is 4500 CR. This is A, this is B, this is C, and this is D. Tell me the values of A. How will you calculate A? Tell me the values of B. Tell me the values of C. And tell me the values of D. Actual values of A, B, C, D. How will you calculate this? Ashish Shakya says 168705. Okay, what's this? Dekho, how will you calculate A? 1687.5. Okay, how will you calculate A? Now A is 135 out of 360. यही मतलब है ना? Total अगर 360 है तो A 135 है. So A is 135 out of 360 multiplied by total. This would be the answer for A. Let's solve this out. Okay, इससे ये गया और 9 से ये गया 4 टाइम्स में, ये गया 50 टाइम्स में, 5 0 टाइम्स में, अगेन ये 2 टाइम्स में, ये 25 टाइम्स में. Alexa, what is 135 into 25? 135 times 25 is 3,375. 3,375 divided by 2. Okay, what is this? This is 168. उसके बाद 7.5. This is 1687.5. A. What about B? B would be 90 upon 360 cross 4500. B would be 90 upon 360 cross 4500. B has a share of 90 of a total of 360. Okay, so it would be 4 times 4500 divided by 4. This is 1125 to be precise. So C would be also 1125 because C enjoys a share of 90 degree. Last but not the least, what would be the share of D? Okay, I can do this 45 upon 360 cross what? Cross 4500. ठीक है? And this would be how much? 562.5. Also, what I could have done,
डिग्रीज देखो, डिग्रीज देखो, डी है 45, सी है 90, मतलब डी वुड बी हाफ टू दैट ऑफ सी. आई कैन से ना डी 45 है और सी 90 है, तो डी वुड बी हाफ टू दैट ऑफ 90. अब डायरेक्टली भी 1125 को यू कैन split it into two. One part would be the answer. Am I clear with this? Am I clear with this? अगर आपको यहां तक समझ रहा है तो लिखो हैशटैग समझा. हाउ टू कैलकुलेट वैल्यूज फ्रॉम डिग्रीज. हाउ टू कैलकुलेट वैल्यूज फ्रॉम डिग्रीज. अगर आपको यहां तक समझ रहा है तो लिखो हैशटैग समझा एंड देन विल मूव अहेड. अगर आपको यहां तक समझ रहा है तो लिखो हैशटैग समझा एंड देन विल मूव अहेड. चलो चलो चलो, लेट्स मूव अहेड देन. एक काम ऐसा भी कर लेते हैं. ओके, व्हाट वी हैव लर्नड टिल नाउ इज डिग्रीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, परसेंटेज को डिग्रीज में कन्वर्ट करना, डिग्रीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, परसेंटेज को डिग्रीज में कन्वर्ट करना. ओके, एंड वी लर्न हाउ टू फिगर आउट एक्चुअल वैल्यूज. हाउ टू फिगर आउट एक्चुअल वैल्यूज. सर एक्सप्लेन बी. एक्सप्लेन बी. बी क्या था छोटू? The total was 4500 CR. The total was 4500 CR. Okay. And B was 90 degree na. This was B. B was 90 degrees. B was 90 degrees. तो B कैसे निकलता है बेटा? B would be 90 of a total of 360 multiplied by 4500. Okay. B was 90 of a total of 360 multiplied by the actual 4500. Okay, let's solve this. ये आ गया 4 times में, so 4500 by 4. इसको डिवाइड करोगे तो 1125 आएगा. I hope I am clear with this. Similarly, C भी था 1125, 90 degrees exactly. चलो, very nice. Now what we'll do, we'll attempt a question based on that. We'll attempt a question based on that. Try this question. Read the pie chart carefully. Read the pie chart carefully and try attempting this question. Read the pie chart carefully. I'll give you like 2 minutes to attempt this question. You have the model-wise distribution of all the ACs sold by AIRC Limited in year 2017. So they are offering 0.5 ton ACs, they are offering 0.8 ton ACs, they are offering 1 ton AC, they are offering 1.5 ton AC और उनका ब्रेकअप गिवन है. ओके, ब्रेकअप गिवन है. डिग्रीज आपको बाहर ही लिखे है, डिग्रीज बाहर ही लिखे है सारे. ओके, now the total sales is also given at the bottom. Total sales is also given at the bottom. Very nice, Mukesh Kathar. Give me answer from the options. Give me the answer from the options. Give me the answer from the options. What's the difference between the sales of 1 ton ACs and those of 0.8 ton ACs? What is the difference between the sales of 1 ton ACs and those of 0.8 ton ACs? Bipul Sinha says B. किस क्वेश्चन का आंसर है विपुल? बी. राहुल किस क्वेश्चन का आंसर है? बी. आशीष शाक्या, which question answer is B? देखो, what we can do is 1 ton ACs का bifurcation is 126 degrees. देखो, 126 degrees. Okay. And 0.8 ton ACs का it is 54 degrees. It is 54 degrees. Okay. What is the difference between them?
आप चाहो तो एक्चुअल वैल्यूज भी निकाल सकते हो। अगर मैं एक्चुअल वैल्यूज निकालूं तो कैसे निकलेगा? 1 टन एसी का, 1 टन एसी का आई कैन राइट 126 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 4826 एंड 0.8 टन एसी का, 0.8 टन एसी का हाउ कैन आई राइट? दिस इज 54 डिग्रीज। ओके, चेक दिस आउट। तो 54 अपॉन 360 cross 4826 and then you subtract both of them, that would be the difference would be तो हम क्या करोगे? 4826 कॉमन ले लो, ठीक है। 360 would be the LCM, 126 minus 54, that should be your answer। 4826 multiplied by 72 divided by 360, 1 by 5, and 5 say it goes in 965.2 times. It goes in 965.2 times. The correct answer is option B. The correct answer is option B. लेकिन ये इंडिविजुअल निकालने से बेहतर क्या था? ये इंडिविजुअल निकालने से बेहतर क्या था? आप डायरेक्टली यहां पे डिफरेंस निकाल लो। एलिक्सा देखो बेटा, मैं कैलकुलेशन फिर से बताता हूं, ठीक है। चलो चेक दिस आउट। मुझे 1 टन एसीज निकालना है, मुझे 0.5 टन एसीज निकालना है, फिर उन दोनों का डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो 1 टन एसी कैसे निकलेगा बेटा? 1 टन इज शेयर इज 126 डिग्रीज, सो 126 डिग्रीज आउट ऑफ टोटल ऑफ 360, ये डिग्रीज है ना, सेंट्रल एंगल टोटल इज 360, 126 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 4826, यह है 1 टन एसी का एक्चुअल सेल्स। 0.8 टन एसीज का, 0.8 टन एसीज का द शेयर इज 54 डिग्रीज, तो 54 अपॉन 360 क्रॉस 4826, आपको इन दोनों का डिफरेंस बताना था बेटा, आपको इन दोनों का डिफरेंस बताना था। द डिफरेंस वुड बी 126 अपॉन 360 क्रॉस 4826 माइनस 54 upon 360 cross 4826. Don't hesitate in calculations because in actual examination, CAT के examination में you will be given virtual calculator, so उसमें कोई दिक्कत नहीं है। Now 4826 कॉमन हो जाएगा इसमें, 4826 कॉमन ले लो फास्टर कैलकुलेशन के लिए। 360 LCM ले लो, 360 LCM ले लिया, so 126 minus 54 हो जाएगा न्यूमरेटर में, and this would be 4826 cross 72 upon 360, this goes 5 times, this goes 965.2 times, correct answer would be 965.2। लेकिन आप क्या कर सकते थे? आप इधर से ही डिफरेंस निकाल लो, डिग्रीज में ही जो डिफरेंस है ना निकाल लोगे तो थोड़ा फास्ट हो जाता है। डिग्रीज में डिफरेंस कितना है? 126 अपॉन 50 माइनस 54, 72, तो उधर ही लिख दो 72 अपॉन 360 क्रॉस 4826, थोड़ा फास्ट हो जाता है, ठीक है। चलो, सिंस वी आर स्टार्टिंग द ट्रेनिंग, नहीं किया तो भी चलेगा, धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। आई होप यू गाइज डू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। Let's move to next question. Try answering question number 2. Hashtag 2 and then your answer. Try answering question number 2. Hashtag 2 and then your answer. CMAT के एग्जाम में calc is not allowed. The only examination where calculator is allowed is CAT. The only MBA examination जहां calculator allowed है वो भी आप नहीं ले जा सकते, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर होता है, वर्चुअल कैलकुलेटर होता है। Is virtual calculator difficult to use in examination? अगर आपने कोई मॉक नहीं दिया, अगर आप मॉक दे रहे हो बेटा कैट का, तो आपको वर्चुअल कैलकुलेटर की हैबिट हो जाती है, ठीक है। यस, स्पीड इज स्लाइटली लेस, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बहुत सिंपल सा बेसिक सा कैलकुलेटर रहता है। सो स्पीड इज लेस, बट अगेन अगर आपको कोई डिफिकल्ट सा कैलकुलेशन करना है उससे तो बेटर है। अगर आपको 43% निकालना है 824 का, तब तो कैलकुलेटर यूज करना बेटर है।
Okay, CMAT में it's not allowed, calculators are only allowed in CAT. और CAT में आपको कैलकुलेटर बहुत ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 4 से 5 वैल्यूज निकालने के लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, बाकी सारे इजी वैल्यूज होंगे, आप निकाल लोगे ओरली, डोंट वरी, कैलकुलेटर का टेंशन मत लो, इट्स नॉट दैट बिग डील। सर प्लेलिस्ट अपडेटेड नहीं है ये वाली, यस चोपड़ा अपडेटेड होगी, नहीं होगी तो मैं टीम को बोल के करवा दूंगा आज के आज, अब भी के अब भी। ओके नहीं एलिना, यू शुड नॉट बी अटेम्प्टिंग मॉक राइट नाउ, इट्स टू अर्ली टू अटेम्प्ट मॉक, you should attempt mock once you are done with 60 to 70% of the syllabus. It's absolutely fine, you have not attempted any mock as of now, don't worry. So meanwhile guys, do answer this question, #2 and then your answer. Try answering this question. The sales of 0.5 ton ACs are what percentage more than those of ACs whose capacity is greater than 2 tons? 0.5 tons AC. ओके अच्छा देखो गाइस, ध्यान दो, ऑप्शन में क्या है, एक्चुअल वैल्यूज पूछा है क्या? एक्चुअल वैल्यूज नहीं पूछा है ना, कंपैरेटिव काइंड ऑफ थिंग, परसेंटेज, व्हाई परसेंटेज इज यूज्ड, परसेंटेज इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन। आपको 90% आ रहा है, मुझे 50% आ रहा है, इसका क्या मतलब है, मैं बुरा हूं आप अच्छे हो, परसेंटेज इज यूज्ड ओनली फॉर कंपैरिजंस। ओके सो यहां पर भी ऑप्शन परसेंटेज में है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, मतलब कंपैरिजन करना है। ओके कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो आपको एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आप ये डिग्री के वैल्यूज में ही खेल सकते हो, क्योंकि अगर डिग्री में डबल है तो एक्चुअल भी डबल होगा, डिग्री में हाफ है तो एक्चुअल भी हाफ होगा। ओके नो आशीष, दैट इज नॉट द राइट आंसर। ओके सो व्हाट्स गिवन, 0.5 ton ACs, 0.5 ton ACs, so 0.5 ton ACs is 45 डिग्रीज। फिर भी अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप ऐसा करो बेटा कि आप टोटल सेल्स को ना 360x अज्यूम कर लो। ध्यान दो, assumption will play a very important role, assumption will play a very important role। ऑल्दो आपको टोटल सेल्स गिवन है, ऑल्दो आपको टोटल सेल्स गिवन है, assume this total sales to be 360x, assume this total sales to be 360x। why sir? ताकि आपका कैलकुलेशन का पेन कम हो जाए। एंड यस, इफ एनीबडी आस्क्स, बोलो कि सर 360x इज 4826, x वुड बी 4826 अपॉन 360। अगर तुम्हें x से इतना ही प्यार है तो ये वैल्यू रख लेना अगर जरूरत पड़े तो, अगर तुम्हें x से इतना ही प्यार है तुम ये वैल्यू रख लेना जरूरत पड़े तो, x है मेरा 4826 अपॉन 360, ये सामने वाले को बोल देना, बट आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आपको इसकी जरूरत नहीं है, आप टोटल सेल्स अज्यूम कर लो 360x। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होगा कि इफ द टोटल सेल्स इज 360x, 0.5 ton ACs would be then 0.5 ton AC would be then how much in terms of x, 45x। है ना, if the total is 360x, yes Ashish, that's right, if the total is 360x then 0.5 ton is 45x। अगर ये x के टर्म्स में 360 लिख दिया तो ये सारे x के टर्म्स में आ जाएंगे, and greater than 2 tons would be, greater than 2 tons would be how much, 18 डिग्री है, मतलब 18x। ओके अब क्वेश्चन क्या है, 0.5 टन मिल गया आपको और ग्रेटर देन 2 टन मिल गया, by how much percent 0.5 ton is greater than 2 ton? So final answer would be 45x minus 18x upon 18x multiplied by 100, difference by reference multiplied by 100। guys, if you remember, what was percent change equations, by how much percent A is greater than B, difference by reference cross 100, the difference would be 45x minus 18x। okay, this is 27x, reference is 18x, multiply it by 100, x से x cancel out हो गया,
मतलब x का कोई वैल्यू नहीं था, इसकी जरूरत नहीं थी, x कैंसिल आउट हो गया तो x की कोई जरूरत नहीं थी. दिस इज 150%. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. The answer to this question is option A. So 0.5 tons is 250% of greater than 2 tons. 250% है, but it is greater by 150%. ये 100% है, तो ये 250% है. So it's greater by 150%. बोलो yes sir. Which site is best for? अरे what should I say? Unacademy is best for. I mean, do you expect कि मैं किसी और प्लेटफॉर्म का नाम लूंगा? ऐसा है क्या? You think so? Abhishek, CMAT is best. Unacademy is best. Sir, how it is calculated? 150. अच्छा देखो, 0.5 टन है 45x, 0.5 टन है 45x. मैंने टोटल अज्यूम किया था 360x. ग्रेटर देन 2 टन्स है तो 18x. ठीक है, ये 45x 0.5 टन, ग्रेटर देन 2 टन 18x. सो भाई ये कितना बड़ा है? 0.5 टन इज greater than 2 ton by the difference is, what is the difference पूछा है ना? The difference is 45x minus 18x. डिफरेंस ही पूछा है ना, डिफरेंस ही पूछा. डिफरेंस इज 27x, लेकिन आपको डिफरेंस परसेंटेज के टर्म्स में आंसर देना था. आपको डिफरेंस परसेंटेज के टर्म्स में आंसर देना था, तो परसेंटेज के टर्म्स में कैसे आंसर दोगे? डिफरेंस अपॉन रेफरेंस क्रॉस 100. डिफरेंस इज 27x. कंपेयर किससे करना था? ग्रेटर देन 2 टन वाले से. ग्रेटर देन 2 टन वाले से मतलब 18x से, मल्टीप्लाइड बाई 100. एंड देन दिस इज x कैंसिल आउट हो गया. 3/2 into 100, 150%. यस सर. वो 100 है तो वो 250 है, so it's greater by 150. It's greater by 150. बोलो yes sir. चलो, yes, no doubt. परसेंटेजेस, रेशियोज का बेसिक नॉलेज, हैंडी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दीज कैलकुलेशंस. ट्राई आंसरिंग थर्ड क्वेश्चन. ट्राई आंसरिंग थर्ड क्वेश्चन. ट्राई आंसरिंग थर्ड क्वेश्चन. Meanwhile, what's the score? What's the score? So RR is 132 for 3. Okay. ठीक है. Come on guys. Try answering this question. Sorry. Try answering third question. From 2017 to 2018 for AIRC, the sales of 0.5 tons increased by 25%. That of 1.5 tons increased by 20%. That of each 0.8 tons and 1 ton increased by 10%. And blah 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 blah. Oh my god. Chalo, do attempt. थर्ड का आंसर. You like 1 more minute? Read the question carefully. अगर आपको नहीं हो रहा, still struggle with the question, try to read it again and again, and then I'll explain, तो आपको ज्यादा समझेगा.
If you will not attempt, there is no point in attending the class. Mm-hmm. Uh, this is 2017. This is 2018. 0.5, 0.8, 1, 1.5, 2, and greater than 2. Okay, chalo. Okay, let's assume this to be 360x. Okay, 2017 में अगर हमने टोटल 360x assume किया, how to attempt this question? देखो आ जाओ. Let's assume this total to be 360x. यहाँ पे टोटल assume कर लिया 360x. आप एक्चुअल वैल्यूज निकाल सकते थे, बट उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है. इफ द टोटल इज 360x, तो 0.5 कितना हो जाएगा बेटा? 45x. बोलो यस सर. 0.8 कितना हो जाएगा? 54x. बोलो यस सर. 110 कितना हो जाएगा? 126x. बोलो यस सर. 1.5 times would be 90x, and then 2 terms would be 27x, and greater than 2 terms would be 18x. बोलो यस सर. So what's given in question? In this is the data for 2017 that we have. In question, they are speaking about 2018. What they are saying, कि from 2017 to 2018, the sales of 0.5 tons AC increased by 25%. 0.5 ton AC increased by 25%. So 0.5 ton AC 45x था 2017 में. So it increased by 25%. तो 45x को में आप 25% से इंक्रीमेंट लाओगे, that would be 56.25x. बोलो yes sir. So it increased by 25% and it is now 56.25x. Also 1.5 ton AC by 20%. 1.5 ton 90x है, 90x है 1.5 ton. It increased by 20%. So this would be 108x. The increment for all types of AC is given. Each of 0.8 ton and 1 ton ACs increased by 10%. 0.8 ton and 1 ton, ये 0.8 ton and 1 ton, each of them increased by 10%. तो 54x का 10% क्या होता है बेटा? 5.4. This would be 59.4x. 126x का 10% क्या होता है छोटू? 12.6. 138.6 हो जाएगा छोटू. बोलो यस सर. क्वेश्चन में और क्या गिवन है? दैट 2 टन एंड ग्रेटर देन 2 टन बाय 15%. ओके, 27 का 15% क्या हो जाएगा? 4.05. सो दिस वुड बी 31.05. 31.05 एंड ग्रेटर देन 2 टन 18x है. 18x का 15% क्या हो जाएगा? 2.7x. दिस वुड बी 20.7x. बोलो यस सर. ये डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है. ऑल ऑफ दीज आर इंक्रीज्ड बाय सर्टेन परसेंटेजेस जो हमने लिख लिए. ओके, वेरी नाइस. नाउ टोटल भी इंक्रीज हो जाएगा. व्हाट इज द टोटल? डू टेल मी. इफ यू एड ऑल ऑफ देम, 2017 का टोटल था 360. 2018 का टोटल आपको ऐड करके निकालना पड़ेगा. कितना है? ऐड करके बताओ. 56.25 plus 59.4 plus 138.6 plus 108 plus 31.05 plus 20.7. आप ऐड करो, तब तक मैं भी ऐड करता हूं. 50 50 100 19 115 115 plus 138 is 253 253 plus 18 is 361 361 plus 31 is 392 392 plus 20 is 412 412 plus
डेसिमल वाला ऐड करेंगे अब 0.65, ओके, 1.25, 1.32, 412 प्लस 2 इज 414. सो ये टोटल होना चाहिए 414x. बोलो यस सर. When you'll add this, this would be 414x. Now what is asked? ये तो हमने निकाल लिया. What is asked? What is asked is कि if find the angle made by the sector representing sales of greater than 2 tons if a new pie chart is drawn for the total sales of AC in 2018. अगर आप 2018 में पाई चार्ट ड्रॉ करोगे, 2018 के हिसाब से पाई चार्ट ड्रॉ करोगे, तो ग्रेटर देन 2 टन का आपको एंगल पूछ रहा है. ग्रेटर देन 2 टन का क्या एंगल होगा ये पूछ रहे हैं भाई साहब. ओके, अगर आप 2018 का पाई चार्ट ड्रॉ करोगे तो ग्रेटर देन 2 टन का एंगल क्या है ये पूछ रहे हैं. ठीक है, अब देखो ग्रेटर देन 2 टन कितना है बेटा, 20.7 है. कितना है, 20.7 है आउट ऑफ 414. बट सर सेंट्रल एंगल तो 360 होता है ना. यहां टोटल 414 है, बट अगर डिग्रीज में मुझे कन्वर्ट करना है, तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर 360 होना चाहिए ना सर. तभी तो हम डिग्रीज में पुट कर पाएंगे. अच्छा, इफ इट इज 20.7 इन 414, तो डिनोमिनेटर में 360 है, तो कितना हो जाएगा न्यूमरेटर, ये निकालना है आपको. दैट्स इट, दैट वाज द क्वेश्चन. सॉल्व फॉर वाई. इट इज 20.7 व्हेन द टोटल इज 414. ध्यान दो, जब टोटल 414 है तो ग्रेटर देन 2 इज 20.7. अगर आपको पाई चार्ट में पुट करना है तो डिनोमिनेटर शुड बी 360. तो न्यूमरेटर क्या होगा ये निकालो, न्यूमरेटर क्या होगा ये निकालो. सॉल्व फॉर y. y वुड बी 20.7 अपॉन 414 क्रॉस 360. ये जो भी आएगा दिस शुड बी द आंसर. डेफिनेटली 27 तो नहीं होगा, इट शुड बी लेस देन 20.7. ओके एलेक्स, अच्छा ये तो इजी है यार. इसको डेसिमल हटाओ, यहां 0 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो. ये 2 टाइम्स में गया और ये 18 टाइम्स में गया. सो करेक्ट आंसर इज 18. करेक्ट आंसर इज 18. करेक्ट आंसर इज 18. गाइस आपको समझा है तो लिखो हैशटैग समझा, नहीं समझा है तो एक बार वापस देखना इसको. दिस इज द बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन that can be given. This is the best possible explanation that can be given. You read the question and question में जो जो दिया है हमने बस वो फॉलो किया है. फाइनली टोटल 414 था. सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हमने 414 को 360 में कन्वर्ट कर लिया एंड देन न्यूमरेटर चेक कर लिया व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर. Am I clear with this? मजा आया सर, समझा ना. अच्छा मुझे आपके चैट नहीं मिल रहे थे. अच्छा मुझे आपके चैट नहीं रीड हो रहे थे, सॉरी. ओके ये सर आप किसका फैन हो आईपीएल में? आरसीबी. आई एम अ नॉन इंजीनियर. आई एम अफ्रेड ऑफ डीआई बिकॉज ऑफ इट्स लैंग्वेज गिवन. नॉन इंजीनियर. ओके वेलकम टू दैट. सर सॉल्व तो हो जाएगा बट लंबा सॉल्यूशन होगा, टाइम लगेगा. आशीष क्या अगर आप फ्लो में हो एंड इफ यू नो द अप्रोच, हार्डली 1.5 से 2 मिनट, हार्डली 1.5 से 2 मिनट. एंड उसके बाद क्या है, मजा आया सर, मजा आया सर, मजा आया. चलो ठीक है, लेट्स जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन. मुझे लगा आप लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, मेरा चैट ब्लॉक हो गया था. चलो ट्राई आंसरिंग दिस क्वेश्चन. बॉयज देखो बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं है पाई चार्ट्स में, ग्राफ्स में. सो डू अटेंड द क्लासेस.
एक टाइम के बाद ना, when themes will be repeated, you guys will be comfortable. And this is the time when you guys will be solving, and I'll be checking the scorecard. 16.2, 146 for 4. Oh, ho, ho, ho. This is not happening. Rajasthan should win today. Rajasthan should win today. Come on, boys, do attempt it. Hashtag 4 and then your answer. By mistake, the sales of 0.510 AC was underreported by 25%. Okay, by mistake. सर बिग नंबर कट करके आंसर फाइंड करना नहीं आता. आई डू प्रैक्टिस फॉर कट और डिविडेंड रूल अप्लाइड. दीपक सिंह देखो, यहाँ पे आप जितना भी बोलोगे ना विजुलाइज नहीं कर पाऊंगा मैं. अगर आपको किसी चीज में दिक्कत आ रही है, किसी भी चीज में, कैलकुलेशंस में, लैंग्वेज समझने में, तो एक काम करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर्सनली रीच आउट करो. हम लोग देखेंगे मिलके कि मतलब क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली आपको कहाँ दिक्कत आ रही. बहुत चीजें हो सकती है, मतलब बोलना नहीं चाहिए, नॉट ट्राइंग टू डिमोटिवेट, बट एक लर्नर अगर कहीं अटक रहा है, उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं. हो सकता है उसका बेसिक्स वीक हो, या हो सकता है वो जल्दी जल्दी रीड आउट करता हो, या हो सकता है उसका इंग्लिश वीक हो, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा. मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है. तो जब तक हम वन ऑन वन डिस्कशन नहीं करेंगे आपको नहीं समझेगा. सो अगर किसी चीज में आपको मेजर दिक्कत आ रही है एंड यू वांट इट टू बी सॉर्टेड, डू रीच मी आउट पर्सनली. अभी आपने एक बहुत जेनरिक बात करी, सर ऐसा नहीं हो पा रहा. क्यों नहीं हो पा रहा? वो जब तक वन ऑन वन नहीं काम करेंगे नहीं समझेगा क्यों नहीं हो पा रहा. व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? चलो, meanwhile guys, do attempt this question. चलो. And these are not difficult questions, these are conceptual questions. बहुत डिफिकल्ट नहीं है यार ये. हेलो रे. रे, लाइक हमारे कल्चर में रे बोलना इज नॉट राइट. मतलब तू रे, ये सब हम लोग नहीं बोलते हैं. सो योर नेम इज रे, अब क्या बोलो, हेलो रे बोलते हैं के साथ. सर आई ऑलरेडी ज्वाइन. हाँ नहीं तो टेलीग्राम नहीं. इफ यू वांट टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम यू नीड टू कनेक्ट पर्सनली. सर ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन कौन से फॉर्मूले याद करें मोस्ट इंपॉर्टेंट? सब इंपॉर्टेंट है यार उसमें. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है? सब इंपॉर्टेंट है. मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ सर्किल, चलो ठीक है, याद को ले एरिया ऑफ सर्किल. सब इंपॉर्टेंट है यार. कैसी बात कर रहे हो तुम? यू आर अ गुड बॉय, एंड गुड बॉय डोंट लीव एनीथिंग. गुड बॉयज कवर एवरीथिंग. Very nice. Ashish Shakya has come up with an answer. Others? This is 2017. This is 2018. Again, we have to do the same thing. 0.5, 0.8, 1, 1.5, 2 greater than 2. ठीक है. Total 360x assume कर लो. Total 360x assume कर लो. हाँ जी. इंटायर एमबीए का क्वांट वगैरह ये तो तुमने नहीं किया 9th-10th में. डीआई तो तुमने कभी नहीं किया, हालांकि इजी रहता है, लेकिन इंटायर क्वांट वगैरह सब 10th तक का ही तो है यार. 45x, 54x, 126x, 90x, 27x and 18x. What they are saying, what not 2018, ये 2018 नहीं होगा. What they are saying कि this value is underreported by mistake. सर डिने कितनी क्लासेस लेते हो सर? क्या लिख रहे हो छोटू रे?
By mistake, the sales of 0.5 ton ACs was underreported by 25%. मतलब एक्चुअल वैल्यू अगर y था, एक्चुअल वैल्यू अगर y था, तो रिपोर्ट कितना हुआ है? रिपोर्ट हुआ है 75% ऑफ y. अगर एक्चुअल वैल्यू y था, तो ये 45x कितना है? ये जो रिपोर्टेड वैल्यू है वो रॉन्ग है. दैट इज 25% अंडर रिपोर्टेड है. दैट इज 75% ऑफ y. सो हम लोग लिख सकते हैं 75% ऑफ y इज 45x. तो व्हाट वुड बी y? y would be 45x multiplied by 100 divided by 75. x. No, not x. वो 75 by 100 है ना, नॉट x. सो ये 4 से 3 और ये 3 से 15. सो दिस इज 60x. मतलब एक्चुअल जो वैल्यू था ना, एक्चुअल जो वैल्यू था ना 0.5 का, वो था 60x. एक्चुअल जो वैल्यू था 60x, लेकिन तुमने क्या कर दिया? अंडर रिपोर्ट कर दिया. तुमने 60x की जगह 45x रिपोर्ट कर दिया. ओके, ये क्वेश्चन में गिवन है. बाय मिस्टेक द सेल्स ऑफ 0.5 ton ACs was underreported by 25%. इफ दिस मिस्टेक इज करेक्टेड, अगर तुमने अपनी मिस्टेक सुधारी, तो व्हाट इज एक्चुअल परसेंटेज शेयर ऑफ 0.5 tons? ओके, इफ दिस मिस्टेक इज करेक्टेड, मतलब आपने 45x की जगह अगर आपने 45x की जगह 45x की जगह 60x लिख दिया, आपने अपनी गलती सुधार ली. सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 0.5 tons? तो फिर इसका एक्चुअल परसेंटेज क्या होगा? सो द एक्चुअल परसेंटेज वुड बी, अब वो 60x हो गया है ना, अब वो 60x हो गया है. गाइस अगर तुम ध्यान दोगे, 45x से 60x हो गया है, तो ये भी 360x से 375x हो जाएगा ना. ये भी इंक्रीज होगा 15 से, बिकॉज ये 45x था तो ये 360x था. अगर इसमें प्लस 15 हुआ है तो टोटल भी प्लस 15 से बढ़ेगा. अब आपको 0.5 10 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. क्या कैसे करोगे आप? 60x अपॉन 375x इंटू 100. 60x अपॉन 375x इंटू 100. बोलो यस सर. सॉल्व फॉर दिस. 60 अपॉन 375 क्रॉस 100. 6000 डिवाइडेड बाय 375. मेरे पास मेरा वर्चुअल कैलकुलेटर है. सुनना है? सुनो. एलेक्सा, व्हाट इज 6000 डिवाइडेड बाय 375? 6,000 divided by 375 is 16. Is 16. मैंने यूज कर लिया मेरा वर्चुअल कैलकुलेटर एंड द आंसर इज 16. दिस इज माई वेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन. दिस इज माई वेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन कि गाइज आप क्या करोगे? यू विल गो थ्रू दिस इंटायर क्वेश्चन वंस मोर. मैं इसका पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दूंगा एट बिफोर 10 PM टुडे. Go through entire question once more and come back tomorrow. We'll start a new set. Again, a very good set, a very themed set. I had this for today, but आज के लिए आपके लिए ज्यादा हो जाएगा. ठीक है? In this set also you will learn many things. In the next set you are going to learn many beautiful things. Okay? So let's stop here for the day. Attempt this first set once again. एक बार शुरू से देखना. वाह सर, शो ऑफ कर रहे हैं यार हमेशा से. एलेक्सा तो मैं बहुत टाइम से यूज करता हूं. एलेक्सा एक शो ऑफ नहीं है यार, ये तो इंपॉर्टेंट चीज है. चलो लेट्स मूव अहेड. सो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, एक बार वापस सॉल्व करना है. इफ यू कैन एक्सप्लेन द लास्ट क्वेश्चन वंस अगेन, आई विल एक्सप्लेन लास्ट क्वेश्चन वंस अगेन. चलो, I'll explain last question once again. Why not? So देखो बेटा, this was the data given for 2017. ये डेटा गिवन है. क्या बता सर एलेक्सा?
Okay, so देखो, this was 45x, this was 45x, and this is 360x. The total was 360x, and then 0.5 ton AC was 45x. Check this out. 0.5 ton is 45x. Got it? Got it? Now what is given कि ये जो डेटा है ना, ये डेटा रॉन्ग है. क्वेश्चन में क्या गिवन है? बाय मिस्टेक द सेल्स ऑफ 0.5 टन एसी वाज अंडर रिपोर्टेड. और ये गलती आपने की है. यू गाइस हैव अंडर रिपोर्टेड दिस वैल्यू. यू गाइस हैव देखो, you guys have written this value wrong. You guys have underreported this value by 25%. Correct value was y. Correct value was y. Correct value was y. Check this out. Correct value was y. And what is reported value? What is reported value? Reported value is 75% of y. Underreported by 25%. So reported value is 75% of y. And this 75% of y from the table is equal to 45x. So we can figure out y. Y would be 45x multiplied by 100 upon 75. And this is 60. When you solve, you will get this as 60x. Okay, gaming home. So actual value था 60, जिसका 25% आप खा गए और 45x रिपोर्ट किया था. चलो, आपको मौका मिलता है इसको सुधारने का. अपनी गलती सुधार लो. 45x हटा दो और उसकी जगह आप 60x लिख दो. लेकिन जब आप 0.5x ये 15 से बढ़ा रहे हो तो टोटल भी बढ़ जाएगा ना. ये टोटल भी 360 नहीं है. अब ये टोटल भी 360 नहीं है. दिस टोटल विल ऑल्सो इंक्रीज बाई 15. द न्यू टोटल इज 375x. बोलो, द न्यू टोटल इज 375x. अब आपको बताना था व्हाट इज द शेयर ऑफ 0.5 टर्म्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो. इस वाले वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करो. व्हाट वुड बी द आंसर? इट वुड बी 60x अपॉन 375x क्रॉस 100. 60x अपॉन 375x क्रॉस 100 एंड सॉल्व इट. इसका आंसर अलेक्सा ने पहले ही दे दिया है. द आंसर वुड बी 16. व्हेन यू सॉल्व इट, यू विल फाइंड आउट दैट 16% इज द आंसर. C would be the answer. Bolo, yes sir. Yes sir. 16% would be the answer. Do solve this set of questions once again. Okay, do solve this set of questions once again. Come back tomorrow at 8 p.m. and we'll be discussing the next set. You'll learn many more things in the next set. Okay, a very important set. You are going to learn many things in the next set. Do join tomorrow sharp at 8 p.m. Till then, enjoy watching IPL. Have a great ahead. Do join my Telegram channel by scanning this QR code. Chalo boys, signing off from this session. See you again tomorrow. सर जीके की क्लास लाइव क्यों नहीं ले हो? Loved your teaching. Thanks. I hope you learned something. Bonnenyut? What is this? Ashish Shakya? Bonnenyut? This is something new. I can understand Bhojpuri, I can understand Hindi, I can understand English, I can understand Marathi, I can understand बस इतना ही. बाकी राजस्थानी वगैरह तो सब समझ लेते हैं. बट व्हाट इज दिस बोर्न यूथ? गुड नाइट इन फ्रेंच. चलो, वेरी नाइस. चलो गाइस, signing off from today's session. Let's